Namaste, everybody. Good morning and welcome. Today, we are on the concluding session of the book, Robin Sharma's book, The Monk Who Sold His Ferrari. And we are going to see all of his teachings, his techniques given in this book in a nutshell, and quickly share what has transformed in our lives. Okay. So, let's begin with a short prayer to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my teacher, to his teacher, to all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, to the beings of knowledge, beings of wisdom. We humbly invoke your divine guidance, divine help, and blessings in understanding the teachings, the knowledge, the techniques given in the book, assimilating them, applying them in our lives whenever required. With thanks and in full faith. Thank you, God, for making me a channel, making us a channel to spread joy, peace, and happiness. With thanks and in full faith. तो चलिए दोस्तों बात करते हैं डे वन की हमने क्या क्या सीखा है क्या पॉइंटर्स थे और क्या हमारे जो क्रक्स है जो आइसिंग ऑन द केक है इस बुक रीडिंग सेशन में इट इज टेकन एज अ वर्कशॉप okay if you are doing it you are definitely getting it okay and you're not the same person who read the first page of the book and who is reading the last page of the book okay so I hope you can see my screen yes okay so quickly I will take you through the book, whole of the book, maybe the main chapters, what we saw today. Okay. So the monk who sold his Ferrari. So how was the flow? What did we do? We do a invocation, the previous session ka recap, action for the week, takeaways, and action for the next week. फर्स्ट हमने क्या किया था बुक का प्रेस था ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट है और ये बुक चुनने का कारण ये था कि इट हैज रियली रियली इट हैड इम्पैक्टेड मी 20 years अगो अब जब मैंने इसे 20 साल बाद पढ़ा तो मुझे कई चीजें जो थी वो फर्स्ट टाइम मैंने सुनी और पढ़ी जैसे कल की जो कहानी थी लास्ट वाली पीटर की वो बच्चे की फेरी टेल जैसे अमेजिंग इट वाज एन आई ओपनर ओके तो दैट इज इट फर्स्ट वाले का रिकैप देख लेते हैं फॉरवर्ड पढ़ा था हमने रीडर्स के लिए पढ़ा था कि आपका बिगनेस जो है आपको फियरलेसनेस एक्सपीरियंस होगा टू लिव अ लेजेंडरी लाइफ इसमें जूलियन मेंटल और उसकी सक्सेसफुल लाइफ की बात करी थी हमने कि जो लॉयर है बहुत ही बे प्रख्यात और एकदम प्रख्यात इज वेरी फेमस एंड सक्सेसफुल सक्सेसफul every way but he's out of balance in life. Okay, so he's sharing, he how he collapses in the full court in front of the audience, everybody, and he's taken to the ICU. 1 minute, please. I need to clear my throat. Yes. So the action उसमें था कि where in your life have you dared and life has encouraged you and you need to recall those things and acknowledge yourself. दूसरा था acknowledge write an acknowledgement to the book of the story of your life. What is your version of success? तो जूलियन का सक्सेस था लेकिन उसके लाइफ में बैलेंस नहीं था वो था तो यंग एक 50 का होगा लेकिन 70 साल का दिख रहा था परेशान हैरान एकदम करेक्ट बहुत कुछ महंगी से महंगी गाड़ियां सब कुछ लेकिन हैप्पीनेस नहीं था तो क्या मिसिंग था वो हम आगे देखेंगे हमें अपनी लाइफ को सामने रख के देखना है कि मेरा सक्सेस का वर्जन क्या होगा क्या सच में मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए या मेरे पास मर्सिडीज है पर आई टेल यू फ्रेंड्स मुझे उसका आई इट्स ओके हाँ झूठ नहीं भूलूंगी फर्क समझ आता है जब मैं मर्सिडीज में ना जाके अगर मैं ओला उबर में जाती हूँ आई कैन रियली फील द डिफरेंस कि ओ अच्छा this is it that's the difference of course but it is not only the biggest part in your life it is just one part of a big book का जैसे एक पेज हो
उस तरह से है जो हम मटेरियल थिंग्स हमें मिलते हैं. So you who are your neglected friends? Did you connect with them to share you have to connect with them to share your experience. ये था हमारा. And I acknowledge our participant Kavita for compiling all of these very well, all her actions for the week and putting it down. I mean, it's really a humongous task and requires a lot of commitment, correct? That she has been doing and integrity. So thank you for that. And the second action for the week tha, note down how many times do you laugh in a day. Increase it by 50%. तो जानबूझ के हंसना हम भूल चुके हैं. मतलब इतना नेचुरल है ये. सीखो दोस्तों, दूसरे जो प्राणी हैं, अदर स्पीशीज के नॉट do not have the capacity to laugh. The only species on the planet who have capacity to laugh are human beings, right? So see that you have good jokes, good sense of humor. Next was connecting with the nature, watching the stars in the night, soaking yourself in the morning sun for 10 minutes at least. And whenever you go in the past, in your mind, note down what lessons did you learn from it. इस पे में ना एक और बात मुझे याद आ रही है. जब हम पास्ट की बात करते हैं, जब हम पास्ट को देखते हैं, तो हमें लेसन्स देखना है कि हमने क्या सीखा. और अगर हम फ्यूचर में चले जाते हैं, क्योंकि लाइक अ पेंडुलम माइंड वहीं जाता है, या तो पास्ट या तो फ्यूचर. तो प्रेजेंट में टिके नहीं रहता. तो प्रेजेंट में टिके रहना है तो आपको पास्ट और फ्यूचर से छुटकारा लेना पड़ेगा. तो वो कैसे करोगे आप? तो जब आप पास्ट में जाते हो, कोई भी इंसिडेंट पास्ट का याद आ गया, करेक्ट, तो आपको उससे लिखना है व्हाट इज माई लर्निंग. और जैसे ही आपको फ्यूचर में आप आ जाते हो, when you're thinking about your future कि how will be my retirement, मेरे बच्चे को कहाँ नौकरी मिलेगी, मेरे बेटी का ब्याह कैसे होगा, अच्छा दामाद, just be there in the future and start planning. Coming from there to here, what will be your action today? If you want your son to have a package of say 8 lakhs, 10 lakhs a year, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि उसको 15 लाख का पैकेज मिले या अच्छी जॉब मिले, तो आज आपका एक्शन क्या रहेगा? मोमेंट यू सी दैट, ना पास्ट में आप रहोगे ना फ्यूचर में, आप सीधा प्रेजेंट में आ जाओगे. सो पास्ट इज ऑलवेज यूज्ड एज अ मैप, करेक्ट, कहाँ जाना है, पीछे कहाँ गए थे. एंड फ्यूचर एज अ प्लान. प्लान, फ्यूचर अगर हम जाते हैं तो अभी उसको प्लान समझो और फटाफट आपको एक्शन करने लगना है. ठीक है. तो दैट इज वन थिंग आई got from this book, that whenever you go in the past, think what is the lesson. When you are scared of the future, see what do I plan now, what do I do now, take it as a plan. Next we saw that yeah, pointers. Okay, pointers from session 3. So I will give after my this is over, I will give you the opportunity to say your pointers. So either you have the book, textbook, or you may have your notebook where you have written your notes. You can share your pointers, the best things you liked from the chapter. So everything happens for a reason. Every event has a purpose, and every setback its lesson. Never regret your past, rather enhance it as a teacher it is. लाइफ कम्स डाउन टू अ फ्यू की मोमेंट्स. तो अगर हम कहें कि आज मेरी उम्र अगर 50 साल है, या तो आज अगर मेरी उम्र 50 साल है, तो 50 साल, ओ वाह, या मैं कहूँ मैंने 30 साल जॉब किया है, तो क्या मुझे 30 के 30 साल याद नहीं होंगे? उसके कुछ मोमेंट्स याद होंगे, और वही मोमेंट्स याद रहते हैं जिन्होंने हम पर गहरा प्रभाव डाला हो, राइट? तो होल ऑफ योर लाइफ इज नथिंग बट फ्यू की मोमेंट्स. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर एक्शन क्या था कि आपको ब्यूटी को देखना है. ऐसे देखना है कि जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा. एक फूल हो, ट्री हो, लीफ हो, एनीथिंग इन योर हाउस, एनीथिंग इन योर हाउस, यू हैव टू डेवलप द ability to see beauty around you. Next is consistency in doing something, tenacity. तो जो एक्शन आपको करना है तो हैबिट फॉर्मिंग के लिए 21 days, करेक्ट, यू हैव टू
do that thing so that it gets inside you. So, for example, simple सा चीज मैंने कहा था कि oiling your feet before sleeping. Now the weather is also changing. So if you have that habit of putting oil on your feet or soaking your feet in warm water and salt before sleeping every day, 10 minutes it will take. It will give you a very good quality sleep. Another very important thing was remaining still and silent for 5 minutes. दोस्तों साइलेंट मतलब ये नहीं है कि बात ना करना, हम रुक कर भी बात नहीं करते, साइलेंट यहाँ होता है मेंटल बॉडी में। करेक्ट। तो जैसे स्लीप इज फॉर बॉडी, जितना फायदा या जितनी जरूरी स्लीप है शरीर के लिए, उतना ही जरूरी है साइलेंट होना दिमाग के लिए। इसके लिए मेडिटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि जब आप बिल्कुल ट्रांस में मेडिटेशन में चले जाते हो, माइंड कम्स, इट गेट्स अ ब्रेक टू ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज थिंग्स इन योर हेड. It is very important for your mental health in the growing ages. One seasonal fruit every day, may it be banana, apple. So yeah, यहाँ पर मुझे ये था कि जब हमें बहुत जोर की, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग, पीपल वी आर वर्किंग, तो हमें भूख लगती है, या इवन आई थिंक हाउस वाइफ अगर भूख लगती है, फट से कुछ भी ग्रैब कर लिया, मुंह में डाल दिया। करेक्ट। वेफर्स खा लिए, चलो भाई एक चॉकलेट ही खा लिया, चलो। तो इसमें आपको एक ऑल्टरनेट देखना है, फ्रेश फ्रूट्स। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाइफ की ना, हम खुद एक लाइफ है। तो ये लाइफ चार्ज होती है लाइफ ट्रॉन्स डे, लाइफ ट्रॉन्स इन इंग्लिश एंड इन हिंदी दे आर कॉल्ड प्राणा। तो ईट द फूड विच इज प्राणा, डेड फूड ना खाएं, ठीक है। दैट इज फॉर योर हेल्थ। सेशन 4 के पॉइंटर्स थे। नाउ आई विल इनवाइट अदर पीपल हाँ टू से द पॉइंटर्स, ओके। मैं आधे बोलूंगी, बाकी पॉइंटर्स आप बोलोगे। सो बी प्रिपेयर्ड विथ योर नोटबुक। ओके, तो नेक्स्ट सेशन 4 के पॉइंटर्स थे, व्हाई डू यू वांट टू लिव लॉन्गर? या व्हाई? तो अगर वही वही जिंदगी रोज रोज जीनी है दोस्तों, वही चीज सेम थिंग, अगर आप देखें कि पिछले अगर 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से अगर एक ही लाइफ चल रही है, वही उठना, वही टिफिन बनाना, खाना बनाना, किचन में जाना, आज क्या बनाऊं, वही क्लीनिंग, डस्टिंग, रेगुलर रूटीन वर्क, गोइंग टू वर्क, अर्निंग ब्रेड एंड बटर, इन्वेस्टिंग सम मनी, सेविंग, स्पेंडिंग, कमिंग बैक, स्लीपिंग, अगेन गेटिंग अप, डूइंग, इज इट लाइफ? If you live the same day, every day, every day, every day, every day for next 30 years, will you call it a life? First thing. And would you want a longer life? What meaning will it have? You tell me. जब वही 30 साल में आपने कुछ नया नहीं करा और अगले 30 साल भी आप जीना चाहते हो, क्या करने के लिए? यही सब चीजें करने के लिए, तो डजंट मेक एनी सेंस, एनी मीनिंग इन लाइफ, ओके। सो द पॉइंटर or the study here says that, yeah, why you want to live longer, correct? So when you have your personal mastery, self responsibility, inner peace, personal change, empty your cup, always be ready, ready to learn. जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे, तब तक पढ़ेंगे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर मैंने खाली मिशन ना ये बना दिया कि मैं सारे बुक्स पढ़ूंगी, तो मुझे कम से कम 200 ईयर्स मुझे लगता है जीना पड़ेगा, फिर भी शायद मेरी जो मैं बुक्स पढ़ना चाहती हूँ वो शायद ही कंप्लीट होंगे। राइट। सो या इवन दिस कुड बी द पर्पस ऑफ लाइफ फ्रेंड्स, जस्ट रीडिंग आउट ऑल दैट मटेरियल द ग्रेट ग्रेट पीपल हैव लेफ्ट डाउन फॉर अस। इतने बड़े बड़े लोगों ने जो अपना अनुभव लिख कर गए हैं, अपने टीचिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस लिख के गए हैं। जरूरी नहीं है कि मैं उनके वो 40-50 साल और जीऊं, उनके वो 40-50 साल का अनुभव मैं 5 दिन में वो उनकी बुक पढ़ के ले सकती हूँ। इजंट इट अमेजिंग? 50 साल, 60 साल की किसी की जिंदगी का अनुभव आप 5-6 दिन में पा सकते हो, ले सकते हो, समझ सकते हो। Okay, so you keep your cup empty, invest in yourself because you are the most important asset of yourself. आपके पास कितने भी स्टॉक्स होंगे, गोल्ड होगा, प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन आप हो तो वो है, आप नहीं तो वो भी नहीं आपके लिए। राइट। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक।
at the same time, you are not only the body, you are also the mind and you are the soul. Next is action for the week is be still and silent for few minutes of the day. Be mindful of your work as silently as you can. Observe a fast for this is to मौन व्रत. ओके, तो एग्जैक्टली चुप रहना. तो पहले जब हम बाहर से चुप रहे, साइलेंस रखें, धीरे धीरे हमारा माइंड भी क्वाइट होने लगेगा. फिर हमें देखना है, सी इफ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्शंस, थॉट्स ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल. ओहो, दिस इज ऑल्सो ग्रेट. कि क्या आपके थॉट्स हैं वो माइंड से हैं, सोल से है, या बॉडी से है. फॉर एग्जाम्पल, बॉडी खाना मांग रही है, तो क्या सच में बॉडी को खाना चाहिए? तो ये माइंड के पास जाने दे. करेक्ट. तो माइंड बोलेगा हाँ आदत है, इस समय तो चाय चाहिए है हमें. तो वो, तो क्या आप आदत से आ रहे हो या आप सोल से आ रहे हो, विच विल थिंक दैट वेदर इट इज रियली रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी और नॉट. ओके, द पॉइंटर्स थे एक्शन, रिएक्शन, कंट्रोल्ड, रिसेप्शन. देन या आई थिंक सेशन 6 के थे पॉइंटर्स. माइंड इज लाइक अ गार्डन. तो यहाँ पर वो फेबल था, ठीक है, जो हमें पढ़ना है. योगी रमन ने जो जूलियन को बताया और जूलियन ने जो राइटर को बताया. तो जो फेबल था, उस फेबल में जो 7 पॉइंटर्स हैं, वो पॉइंटर्स को या उस कहानी को याद रखते हुए हमें उनके जो 7 सिंबल्स हैं वो हमें याद रखने हैं. तो उसमें जो पहला सिंबल था उसमें था माइंड, गार्डन. जो गार्डन का सिंबल था दैट सिंबलाइजेस माइंड. तो इसमें जब हम वरी करते हैं, चिंता करते हैं, तो हमारे माइंड में ऐसे है कि आपका एक गार्डन है और आप उस गार्डन में कचरा भर रहे हैं. या एक गार्डन है जिसको आपने, या आपका बैकयार्ड है, आपके घर का पिछवाड़ा है, जगह है. आप, या आप समझ लीजिए अगर आप फ्लैट अपार्टमेंट में रहते हो तो आपकी बैल्कनी है. अगर आपने उसमें पेड़ पौधे लगाए और आपने उसमें ध्यान नहीं दिया, वो सड़ जाएंगे और कचरा जमा हो जाता है. सेम इज विद द माइंड. तो इसमें हमने सीखा था कि माइंड में एवरी डे ऑलमोस्ट 60,000 एवरेज बंदा जो है, 60,000 विचार, 60,000 विचार उसे आते हैं. मजे की बात है कि 95% ऑफ द थॉट्स आर रिपीटेटिव. रिपीटेटिव माने वही वही विचार बार बार दोहराते हैं. आज खाना क्या बनाना है, कपड़े क्या पहनने हैं, हाय मेरा बच्चा नहीं सुन रहा, हाय मुझे लाइट बिल भरना है, ये महीने में कैसे चलेगा, मेडिक, ऑल दोज रिपीटेटिव थॉट्स. 90% ऑफ द थॉट्स आर रिपीटेटिव. इससे और एक सरप्राइजिंग फैक्ट आप सुनोगे. ये 66 या 60 to 70,000 थॉट्स, उसमें से 95% रेपिटेटिव. और एक शॉकिंग बात मैं आपको बताऊंगी, उसमें से 75% थॉट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं. कैन यू गेट दैट? 75% of the thoughts every day are negative thoughts. Correct. So see there what you can do for that. तो ये एक, अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव थॉट्स आते कहाँ से हैं, अगर आप उसकी जड़ तक जाएं कि हम नेगेटिव सोचते क्यों हैं, तो जो मेरी समझ में आया है, ये नेगेटिव थॉट्स कम फ्रॉम कंप्लेंट्स, sheer complaints. Moment you stop complaining, the number of negative thoughts reduce. तो अगर आपको कंप्लेन नहीं करना है तो आपको क्या करना है? दिमाग जो है, हमारा माइंड है, एक अमेजिंग टूल है. तो उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि एट अ टाइम ये एक ही थॉट रख सकता है. सो गुड ना, एट अ टाइम वन थॉट. तो अगर आप उसमें से कंप्लेन निकालेंगे तो आपको उसमें भरने के लिए ग्रैटिट्यूड रखना है. Be grateful for all the things in your life. Each thing, everything, big things, small thing. Moment you do this, you will see that the negative thoughts in your mind will come down. Okay. So this was it. And then, uh, where am I? Yes. Okay. तो अगर हम ब्रूडिंग कर रहे हैं, फियर में जा रहे हैं, तो वी हैव टू सी दैट इट इज लाइक अ गार्डन, और अपने गार्डन में आप खराब कर रहे हो अपने गार्डन को.
और हर इंसान जो है अपने दिमाग का सिर्फ 1/10 भी नहीं, 1%, 1/10 नहीं, 1% भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये माइंड को इतना पावर है। ओके, देन वी हैड एक्शन फॉर द वीक, फॉर द 6th वीक 11th अक्टूबर को हमने किया था, विच मीन्स दैट आपको अपने सारे भय जो है, फ्यूचर का भय है, बुढ़ापे का डर है, अकेलेपन का डर है, इनसिक्योरिटी का डर है, जो भी आपको डर है, आप अपने उन सारे फियर्स को लिखेंगे। Correct. Then it says that be present about your worrying thoughts throughout the day, every night till the next session, Sunday session. इसमें मैंने आपको एक ये बताया था, एक्शन फॉर द वीक ये था कि जब भी आपको लगे कि आप चिंता कर रहे हो, आपको उसे रिप्लेस कर देना है ग्रैटिट्यूड से। रात को सोते वक्त आपको एक ये हैबिट रखनी है कि हर सिचुएशन में आपको एक पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है कि कुछ भी बुरा हुआ, कुछ अनचाहा हुआ, बुरा नहीं कहूंगी, अनचाहा हुआ, तो उसमें भी कुछ तो बेटर है। ये एक था। दूसरा था, एक हैबिट हमें रखनी है कि बिफोर स्लीपिंग, करेक्ट, यू थिंक ऑफ, और इवन ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट यू आर अवेयर, अवेयरनेस आ जाती है कि यार ये गलत हुआ मुझसे, यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन योर माइंड इमीडिएटली इरेज दैट थिंग एंड पुट द, इमेजिन व्हाट शुड हैव बीन देयर। अगर आपने इतना भी कर दिया दोस्तों, तो आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे काफी आगे बढ़ गए हो। कि आपको रियलाइज हो गया कि यार ये बात मेरे से अच्छी नहीं हुई, या मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। So no matter what happens to you in your life, you alone have the capacity to choose your response to it. When you form the habit of searching for the positive in every circumstance, your life will move into its highest dimension. This is one of the greatest of all the natural laws. From struggle comes strength. When one door closes, another opens. Mind is like a muscle, use it or lose it. Live from the imagination, not from the memory. मतलब आप फ्यूचर से आइए, तो फ्यूचर से आएंगे तो आप फ्यूचर में क्या चाहोगे, अच्छी चीजें चाहोगे। तो इमेजिन दोस ग्रेट थिंग्स, एंड नॉट ओनली इमेजिन, write them down, what will be your first action for that future. Okay, words are embodiment of power. Action for the week 7 was write down the quotation on page 50 in your journal, read it every morning, and write down what were your dreams when you were small and what you wanted to be, do, and have. This is just the model we had in our मैजिक सेशन ऑल्सो। हमेशा बी, हम बनना क्या चाहते हैं बहुत जरूरी है। अगर हम पाना चाहते हैं, तो अगर जैसे गाड़ी है, घर है, बंगला है, लेकिन मैं हो क्या गई हूँ, तो मैं एक बहुत रूड हो गई हूँ, मैं खड़ूस हो गई हूँ, मैं सीरियस हो गई हूँ, तो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम होना क्या चाहते हैं, तो मैं होना चाहती हूँ बहुत काइंड, बहुत लविंग, बहुत हेल्पफुल। ये मैं होना चाहती हूँ। मैं पाना क्या चाहती हूँ, 3 घर, बहुत सारा पैसा, क्योंकि मैं जो होना चाहती हूँ काइंड और लविंग, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा आई विल बी काइंड एंड लविंग, या मेरे पास ये होगा, आई विल हैव मनी व्हेन आई एम काइंड एंड लविंग। ओके, सो ब्यूटिफुल थिंग सेड हियर। Mind is a wonderful servant, but a terrible master. The price of greatness is responsibility over each of your thoughts. Persistence is the mother of personal change. Continue doing it consistently. लक इज द मैरिज ऑफ प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी। चांस आया तो हम में कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी माँ टीका करने आती है तो मुंह धोने नहीं जाना चाहिए। यू बी प्रिपेयर्ड व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज देयर। तो इसके लिए हमेशा खुद को लर्नर्स मोड में डालिए। फाइंड अ पैशन इन योर लाइफ एंड परस्यू इट। नेक्स्ट वॉज वॉच योर थॉट्स थ्रू आउट द डे, कीप अ स्मॉल डायरी, नोट डाउन अनवांटेड थॉट्स, strike them off very consciously each night. Keep a tab on your energy leaks. Energy leaks क्या है? Worry and useless thoughts. Find out what you truly love to do and direct all your energy towards doing it. बस वही विचार करना है कि जो आप पाना चाहते हो, करना चाहते हो। 9th सेशन का एक्शन था थिंक डीपली एट द एंड ऑफ द डे हाउ यू वुड इम्प्रूव द नेक्स्ट डे। और यहाँ हमारा आता है प्रैक्टिस the heart of the rose meditation. Okay, so what was heart of the rose meditation? कि फोकस करना एक ही जगह पर, माइंड को स्टिल और साइलेंट करना। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है लाइफ में।
आगे जाने के लिए। ओके, तो दैट वाज अबाउट अवर सेशन 9 एंड नाउ आई इनवाइट यू ऑल ईच वन टू कंट्रीब्यूट। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से कंट्रीब्यूट करें, मेन पॉइंटर्स आपको और क्या बातें इसमें सही लगी हैं। यस, तो हमने पहले देखा था जो सिंबल था माइंड का, और उसके बाद जो भी माइंड कंट्रोलिंग, माइंड को कंट्रोल में लाना, माइंड को प्रॉपरली रखना, उसकी जो टेक्निक्स बताई थी उसमें से एक था हार्ट ऑफ द रोज मेडिटेशन। व्हाट वाज द अदर वन इफ यू नो? यस, सेकंड टेक्निक वाज, I will read it out for you. It says that your mind can hold only one thought, correct? So thoughts are vital, they are living things, they are energy, bundle of energy. तो सेकंड वाला उन्होंने टेक्निक दिया था सीक्रेट ऑफ लेक। सीक्रेट ऑफ लेक इज इमेजिनेशन। बी क्वाइट एंड ऑन द screen of your mind imagine what you really want. Change your thoughts. Okay, so everything is created twice, first in the mind and then in the screen of the mind and then in the real world. So the third one was magic of visualization. Okay, तो एक तो mind पे create करो, third था visualization. तो this was the symbol of the garden और उसका virtue था master your mind, cultivate your mind। तीन techniques दिए थे। हाँ, opposition thinking था। तो जब आपको नेगेटिव थॉट आता है इमीडिएटली, जैसे मैंने कहा इसमें क्या पॉजिटिव है, इसमें भी कुछ पॉजिटिव होगा, तो यू आर ट्रेनिंग योर माइंड। सी, माइंड इज अ सर्वेंट। क्या आपको कैसा लगेगा दोस्तों अगर आपका सर्वेंट घर में आता है और बोलता है कि भाभी जी, मैडम, दीदी जी, ये हटाइए यहाँ से, जरा वहां रख दीजिए, मुझे साबुन ला कर दीजिए, ये वहां रख दीजिए, पोछे की बाल्टी वहां रखिए, आप प्लीज कप। आप बोलोगे अरे यार ये क्या है, आई एम पेइंग यू, यू शुड बी लिसनिंग टू मी, आई शुड बी कमांडिंग यू। आप आते ही मुझ पे शुरू हो गए कि बर्तन यहाँ रखिए, बर्तनों में पानी डालिए, कांच के बर्तन यहाँ रखिए, मैडम जी साबुन वहां। अरे ये तो क्या हो जाएगा? आई एम श्योर नो बडी इज गोइंग टू टॉलरेट दैट, राइट? योर मेड कमिंग एंड स्टार्टिंग टू गिविंग यू कमांड्स, ये करो वो करो, तो ऐसे ही हो रहा है ना। आपने ब्रेन को कमांड देना है, लेकिन होता यह है हमारा माइंड हमें कमांड दे रहा है, राइट? So with these three techniques, heart of the rose meditation, opposition thinking, and the secret of the lake, correct, you will be able to master your mind. उसमें जो second symbol जो कि इसमें यूज किया गया था इस बुक में, according to the fable, was the lighthouse. Lighthouse बोलता है follow your purpose, purpose of your life. What is the purpose of your life? ये आपको तब आएगा जब आप खुद को एग्जामिन करोगे, सेल्फ एग्जामिनेशन। attaining your goals, what will you do to attain your goals, you will write down what are the steps। इसमें कहा जैसे आप फ्यूचर का सोचते हो, राइट, what is the smallest or the first step you will do। ओके, तो आप क्लियरली डिफाइंड, ऐसे नहीं कि हाँ बस भाई बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए, पैसा हो, नहीं, ऐसे नहीं गुजरता है। यू हैव टू डिवाइड योर रोल्स इनटू पर्सनल, पर्सनल गोल्स। पर्सनल मेरा गोल क्या है, मेरा फैमिली गोल क्या है, मेरा प्रोफेशनल गोल क्या है, मेरा सोशल गोल क्या है, कि मैं कहाँ, मतलब मेरे कितने फ्रेंड्स होंगे, मेरे रिलेटिव्स अगर हैं आप उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, आपके स्पिरिचुअल गोल्स क्या होंगे, करेक्ट? वो सारा इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, करेक्ट? देन वी कम टू द नेक्स्ट सेशन। 13 सेशन में था टॉकिंग अबाउट द करेज। तो अगर आपको अपना पर्पस मिलता है, तो यहाँ पर था राइट डाउन अ रिटर्न इन्वेंटरी ऑफ योर वीकनेसेस। आपके वीकनेसेस क्या क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आता था, करेक्ट? इट वाज दैट। तो if I keep that in mind and if I keep a tab on myself, okay, I write an inventory, what are my weaknesses? So when I get angry, my volume increases. Okay, so this is what you need to make a list of। सेशन 14 की बात थी कि it takes about a 1 month to install a new habit। Okay, so 1 month we have to complete। तो इसमें इन्होंने 10 रिचुअल्स की बात की थी, अगर आप याद करें तो 10 रिचुअल्स हैं आपके एक प्रॉपर फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए, राइट? उसमें से काफी फर्स्ट रिचुअल, सेकंड रिचुअल वाज रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी। फिजिकलिटी टेकिंग फिजिकल केयर। तो इसमें मैंने आपको हैबिट डाली थी कि सोने से पहले हमेशा अपने पैर और अपने क्राउन का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। अपने बालों का, इट्स नॉट एट बाल बहुत झड़ रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स क्लीनिंग इट,
oiling it, tying it properly. Okay, so that is one thing, physical care, because this body is your vehicle in this world. You may be an excellent person, but if your body is not there, you cannot do anything in the world. You may have noble ideas. There are many great people who could not complete their full lives, could not live their full lives, and they left their missions incomplete. Okay. The third ritual was ritual of radiant living. Radiant living is eating live food, vegetarian food. Reading right books is your food for your mind, food for your body, food for your soul is meditation. 15 session में हमने करा था. Let me tell you again. He's talking about uh, ancient rule of 21 and the 10 rituals की ही बात की जा रही है इसमें. Starting your day well off with proper thoughts, giving prayer, positive thoughts. Okay. Then he says ritual of music. Music is very important for life. It is, when you talk about music, there are different types. And many a times, I'm sure some or the other uh, stage of your life, you must have come across music in a different form. Correct? So revive that form of your music. One second. Yes. Okay. So that was it. Talking about the ritual of music and the 10 rituals. Anybody would like to say the 10 rituals? Because then I will only focus on the symbols, 7 symbols जो इस फेबल में थे और उनका मीनिंग क्या था. किसी के पास 10 रिचुअल्स लिखे हुए हैं क्विकली? कविता, स्मिता, रूपाली. If you have the 10 rituals, ritual of music, as I can see, one place. Yes. Ritual of physicality, ritual of music. What other ritual? Ritual of silence, it was also there. Ritual of knowledge, abundant knowledge, बहुत सारा knowledge लेना. Ritual of radiant living. Okay. So please see if you have, you can share. I'd ask you to please come prepared for this session. और इसके बाद next symbol. So first was the garden, next was the lighthouse, third is the sumo. Now what is sumo? Sumo, the virtue is practice kaizen. What is kaizen? Kaizen is self mastery. Self mastery, small improvement each day. Little improvements every day, mastery over small things each day. So success outside first begins inside you. Okay, तो consistently माइंड बॉडी और सोल में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करना. और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको अगर किसी चीज से डर है तो आप उसे ओवरकम करेंगे. फेस इट हेड ऑन. ओके, तो जैसे मैंने शेयर किया था सेशन में, मेरा डर पेस्ट ज्यादा करके छिपकली के लिए. ओके. So do that. And 10 rituals we need to follow in this. And universe favors the brave. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि करेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप बैठे रहोगे कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाता, तो ये नहीं होगा. ठीक है. Pragati, यू I नीड टू डू found the दैट. rituals when you want me आप to 10 रिचुअल्स say. पढ़ दोगे एक बार? I हाँ found प्लीज. the page of यस यस. rituals. हाँ रिचुअल्स Okay, का है, लेकिन sure. 10 के 10 हाँ पढ़िए. Solitude, solitude, physicality, life nourishment, abundant knowledge, personal reflection, early awakening, music, spoken word, congruent character, and simplicity. वाओ सुपर. द लास्ट वन वाज वेरी ब्यूटीफुल, सिंपलिसिटी. क्योंकि क्या होता है ना, कई बार इनफैक्ट मेरे साथ भी Yeah. ऐसा हुआ है, मे भी शायद उम्र से होता होगा, आई डोंट नो. एट दैट एज यू नीड, आई हैड मोर देन, आई डोंट रिमेम्बर, 8 to 10 वॉचेस. आई वुड सी दैट आई डोंट रिपीट. 15 दिन में तो एक वॉच का टर्न नहीं आना चाहिए. इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड. अभी आई फील एक भी नहीं पहनती हूँ कि मोबाइल इज देयर. एक है, कहीं जाना हो तो जस्ट वन वॉच. Correct. So people ask me, okay, you want watch? I want to give you, gift you my relative. I say, please don't keep it simple. Don't gift me. I'm not going to use it.
आई हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स, कैन यू बिलीव? डे वाइज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यही परफ्यूम। ओ गॉड, क्या कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। So, जब मैंने ये रिचुअल ऑफ सिंपलिसिटी, रियली मेक योर लाइफ सिंपल, इट्स सो डिफिकल्ट, है ना। और मैंने एक सीखा, इसी इसी बुक, अभी अभी ये बुक रीडिंग के दौरान जो मैंने सीखा लाइफ में सिंपलिसिटी, तो जब मैं खाना, आई ईट फूड एंड आई एम वेरी प्राउड कि व्हेन आई कुक फूड और इन माय हाउस द मील इज all the types of things, like there has to be salad, there has to be dahi ka raita, there has to be a chutney, there have to be two vegetables, एक क्या बोलते हो, भिंडी, फ्रेंच बीन्स, फ्लावर वैसी वाली, और एक पल्सेस वाली, एक रस वाली भाजी होनी चाहिए, दैट शुड बी दिस। ओ माय गॉड, एंड माय लाइफ वाज सच अ मैस, एंड आई एम रनिंग अबाउट डूइंग थिंग्स, भाइयों को बोल रही हूँ ये करो वो करो वो करो, और खाते कितना है अल्टीमेटली। सो देन आई लर्न लाइफ टू बी सिंपल इज, इट सबको बना के एक खिचड़ी बनाओ, मस्त पापड़ अचार के साथ खाओ, दैट्स इट। क्योंकि व्हाट आई वाज थिंकिंग फ्रेंड्स, कि सारा फाइबर कैसे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे मिलेंगे, प्रोटीन कैसे मिलेगा। तो अब जब ये सब चीजें एक ही चीज से भी मिल सकती हैं, सो यू कैन कीप योर लाइफ सिंपल। टाइम इज वेरी लिमिटेड। थैंक यू कविता फॉर शेयरिंग दैट, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा सिंबल था, so first was the garden, that is mine. Next was the lighthouse, which is the purpose. Sumo represents yourself, Kaizen, little improvement every day. Okay, and universe helps those who are brave, take the action. नेक्स्ट सिंबल था द पिंक वायर, जो कि उसके प्राइवेट पार्ट पे, सुमो के प्राइवेट पार्ट पे ढकी हुई थी, बंधी हुई थी। इट represents डिसिप्लिन। डिसिप्लिन Discipline. इज बिल्ट, या discipline is built by consistently performing small acts of courage. Very, very important. Discipline comes from the word disciple. Disciple comes from the word learning. So discipline is nothing but learning for your lifetime. Right? So small acts of courage, when you do, the more you nurture the embryo of self-discipline, the more it will mature. Okay? So जितना आप सेल्फ को फोकस करोगे डिसिप्लिन पे, छोटा छोटा डिसिप्लिन की, और उसके लिए ना अवेयरनेस होना जरूरी है, नहीं तो हमें लगेगा कि हम बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है। पर क्या, जब आप खुद पर प्रॉपर फोकस करते हो कि जब पानी पीने के बाद मैंने ग्लास कैसे रखा, सिंपल चीजें, अगर आप दरवाजा बंद कैसे करते हो निकलने के बाद, सिंपल स्मॉल थिंग, कि अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पति कहते हैं कि तुम किचन में जाती हो तो बहुत आवाज करती हो। मैंने कहा इज इट? मुझे तो खुद आवाज पसंद नहीं है यार। पूरा दिन मैं बच्चों की आवाज में, शोर में रहती हूँ, और बिल्कुल मुझे शोर पसंद नहीं। हाँ, लेकिन तुम बहुत आवाज करती हो, और मैं किचन में रहता हूँ, बिल्कुल आवाज नहीं करता। नो, आई डू नॉट टेक इट एज अ ऑफेंस थी। अगर मैं वो पुरानी वाली प्रगति होती तो पेपर छाप के करेक्शन करके मार्क्स भी दे देती कि भाई ये ऐसा है। लेकिन हियर आई एनालाइज्ड माई सेल्फ, आई सेड ओके, पॉइंट नोटेड, आई विल सी। और सच में जब मैं किचन में गई, मैंने देखा, मैंने कप रखा, ऐसा आवाज आई। अब मैं बहुत कॉशियस हो गई, कप रखना, चम्मच उठाना, बर्तन लेना, डब्बे निकालना, धीरे से रखना। आई वॉज सो कॉशियस, एंड नाउ आई वॉज ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड फॉर लेटिंग मी नो, एंड आई वॉज ग्रेटफुल टू द बुक्स, टू द स्टडी, फॉर टू माई सेल्फ, फॉर सेल्फ अवेयरनेस, कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, एंड आई बिकेम डिसिप्लिन, कि मैं दरवाजा कैसे बंद करती हूँ, मैं अपनी चीजें कैसे रखती हूँ। ठीक है। सो ऑलवेज जब भी कोई कुछ आपको बोले और आप अपसेट हो रहे हो ना, तो पॉइंट इज, पहले तो आप खुद को चेक कर। ठीक है। और जबकि मेरा उल्टा होता था, पहले किसी ने कुछ बोला तो उसको पहले रफा दफा कर दूंगी, मैं बाद में सोचूंगी मैंने क्या गलत किया। So this is the greatest transformation you can do. Okay. And then willpower. Okay. So for willpower, हम जो उपवास रखते हैं, जैसे 9 दिन रखते हैं कुछ लोग, नवरात्रि के, श्रावण का रखते हैं, this improves their willpower. तो आपको वाव ऑफ साइलेंस है, आप क्रिएटिव एनविजनिंग कर सकते हो, आप मंत्रास चैंट कर सकते हो। नेक्स्ट वॉज चैप्टर 11, योर मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी। कोई, किसी को याद है आपकी सबसे प्रेशियस कमोडिटी क्या है जो आपके पास है? सबसे प्रेशियस कमोडिटी इज, Body. यस, यू योरसेल्फ।
Yes, body Yes, and mind. yes, you are your Time, precious time. commodity, time. And you live in time. Oh, Correct? You live in time. Otherwise, body is just body. Time खत्म हो गया तो it's gone. सो टाइम ना, यहाँ पर हमने सीखा था कि जो टाइम चोर होते हैं उनसे बचे। तो अगर मैंने गोल्ड चेन पहनी है, इयररिंग्स पहने हैं, तो आई एम वेरी केयरफुल। हाँ, कि भाई कोई चुरा ना ले, भाई कहीं गिर तो नहीं गई मेरी चेन, इतना ध्यान रखते हैं। तो क्या हम अपने समय का ध्यान रखते हैं? डू वी रिस्पेक्ट अवर टाइम? टाइम इज योर मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी एंड इट इज नॉन रिन्यूएबल। फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। टाइम का ध्यान हम कैसे रखेंगे? अपनी प्रायोरिटी पे। कि अगर एक साथ चार चीजें होती हैं, कल मैं क्लास में ये बता रही थी बच्चों को, स्पेशली 10th और 12th के बच्चे, बोर्ड के, जो बहुत स्ट्रेस में आ रहे हैं विद अप्रोचिंग एग्जाम्स। So I told them, children, you know what is priority? How do you determine your priority? For example, suppose you're sitting and completing some assignment. At the same time, your phone rings, correct? And doorbell rings, and there is a milk kept for boiling in the kitchen, correct? And your mom says, please look at it, pay attention, उसको देख लेना, दूध गर्म करने रखा है। अब ये फोन की घंटी बजी है, डोर की घंटी बजी है, माँ ने कहा है बेटा दूध पर देख लेना, और आप असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके देना है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। अब ये सब एक साथ आ गया। अब आप प्रायोरिटी क्या करोगे? तो कुछ ने कहा पहले हम जाके दरवाजा खोलेंगे, बोले किसी का नहीं, हम तो पहले फोन उठा लेंगे, फोन की घंटी बज रही। किसी का पहले हम किचन में चले जाएंगे। किसी का नहीं, मैं तो पहले मेरा पोर्शन कंप्लीट करूंगा, बजता रहे डोरबेल। So thing is, this makes you think what are your priorities in life. Whenever you are overcome, think what will come first. What matters the most at this particular point of time. और इसके लिए have courage to say no. Simplify your life and have courage to say no. Okay, then there is a rule of 20. Rule of 20 says that जिंदगी के जितना भी 100% चीजें हैं, उसमें से हम लोग सिर्फ 20% जो हम एक्शंस करते हैं वो 80% रिजल्ट देता है। तो सारे एक्शंस रिजल्ट नहीं देते, कई एक्शंस हैं जो वेस्ट होते हैं हमारे। ओके। और हमेशा एक डेथ बेड मेंटालिटी रखें कि इफ टुडे इज माय लास्ट डे, व्हाट विल आई डू? How would I behave? What are the things I would do first? Okay. So that was it. And the next chapter, 12th chapter, was ultimate purpose of life. So everything that lives, lives not alone, not for itself. So ultimate purpose, that was the symbol. अल्टीमेट पर्पस क्या है लाइफ का? रोज, येलो रोजेस, व्हाट इज दैट? सेल्फलेसली सर्व अदर्स। जब तक आप अपनी जिंदगी में, जैसे मैंने कहा ना, वही वही लाइफ 20 साल जीना, 40 साल जीना, 50 साल जीना, और उसको बोलना कि भाई हमने जिंदगी जी, क्या जी भाई? वही चीज तो करी, वही बैग उठाई, वही ट्रेन पकड़ी, वही काम पे गए, वही वापस आए। 30 साल एक ही चीज करी और तुमने कहते हो कि तुमने जिंदगी जी है? क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी तो कुछ लम्हे है ना। तो अगर जिंदगी मेरी कहूँ तो main events, my marriage. I don't remember everything about my marriage, but few moments. My kids, my kids going to school, their first my, और जो loving moments है वो, those, that is life. 30 साल की जिंदगी क्या मैं 3 घंटे में भी नहीं बता पाऊंगी आपको मैं? It's hardly few moments which matter. Okay, so quality of your life comes down to quality of your contribution. इस लाइफ में आपने जब भी किसी की, दूसरे की लाइफ को छुआ है, कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कविता शेयर कर रहे थे कल अपने नेबर के, हाउ शी कंट्रीब्यूटेड टू दैट ओल्ड लेडी बाय जस्ट बाय ब्लेसिंग एंड सेंडिंग गुड थॉट्स, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, जस्ट बाय रिमेनिंग silent at time and silently blessing and praying rather than making noise and giving sermons is also a way of serving. कितने सेंट्स हैं, साधु हैं, हम बोलते हैं अरे वो तो संन्यास लेके वहां चले गए, वो क्या संसार में है। बट अगर आप जाने, वो वहां शांत रहकर भी ब्लेस कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर साइंटिस्ट इसरो में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, वो सिर्फ अकेले अपने इस क्षमता से नहीं भेज रहे हैं। देयर आर अदर पावर्स विच आर सपोर्टिंग इट, साइलेंट पावर्स। You decide what you have to be, how you have to contribute, correct, to the
society. To cultivate the sacredness of each day, live to give. ये आपका symbol रखिए, live to give. And by elevating the lives of others, your life reaches its highest dimensions. So always do small acts of kindness, छोटी छोटी चीजें, give for to those who ask, cultivate richer relationship. कभी कभी ना इग्नोर करना होता है रिलेशनशिप को ज्यादा गहरा बनाने के लिए. मुझे याद है जो आज मेरी बहुत खास फ्रेंड है, more than 32 years of friendship. तो इनिशियली इट वाज नॉट दैट. उस दिन मैं बैठ के रिफ्लेक्शन कर रही थी, तो मुझे याद है कि इनिशियली बहुत सारी चीजें थी जो मैंने ट्रिपल उसकी ट्रिपल चाहिए इग्नोर तो करी बाहर थी. रख दे। हाँ कविता प्लीज मिल. 1 मिनट। तो तो हाँ सॉरी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने उसकी इग्नोर करी थी, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी. लग रहा था नहीं, मुझे ऐसी दोस्त नहीं चाहिए, मैं नहीं बात करती इससे. व्हेन आई वाज वेरी यंग. But many times I ignored that and I continued. And today it has become a richer friendship, Amazing friendship. We are so much into each other कि guaranteed है यार. क्या मैं और वो कोई अलग नहीं है. ये रिच बनने के लिए आपको कभी इग्नोर करना पड़ता है, कभी आपको देना पड़ता है. राइट. 1 minute प्रगति, वन मोर थिंग टू ऐड हियर इज यस. कि यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर आपने किसी की जो होप है वो रिकंडल कर दी, तो आई नोटिस कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो रिकिंडल हो गई, बिकॉज डेफिनेटली. किसी को देना है जोत तो अपनी जोत तो चाहिए ना जगी हुई। परफेक्ट परफेक्ट. एंड सेम एज द सिंबल हियर अबाउट द रोजेस. तो जब आप फूल किसी को देते हो तो थोड़ी खुशबू आपके हाथ में रह ही जाएगी. हो ही नहीं सकता कि आप बिना खुशबू के किसी को फूल दे सकें. तो दैट इज द सिंबल ओवर हियर, द येलो रोजेस. कमिंग नेक्स्ट, ओ वी हैव 10 minutes मोर. द कमिंग नेक्स्ट इज द टाइमलेस सीक्रेट ऑफ लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस, जो हमारा कल का ही सेशन था, जहां पर हमने सीखा डायमंड्स. तो व्हाट आर दिस डायमंड्स? द पावर ऑफ नाउ, द प्रेजेंट. Correct. So living in the now is the greatest gift. Never sacrifice happiness for the achievement. कि अभी जो sacrifice, small small things, living with your children. और इसमें जो प्यारी सी हमने कहानी सुनी थी, live your children's childhood. If you have little children, you are very lucky, very lucky. I see, females, ladies, very much stressed up, जो कि स्पेशली 30s में है, लेट अर्ली 40s में है, कि अरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं यार, उसके स्कूल का ये यार, उसका वो यार. ऐसे यार मजे लो, मजे लो. हमने नहीं लिया, हम पार आ गए, ये दिन भी निकल जाएंगे. आई जस्ट ओवरहर्ड अ लेडी इन द ट्रेन टेलिंग द अदर पर्सन, कि अरे यार मुझे इतना काम है, बॉस तो मेरे बगैर करेंगे नहीं, ये मुझे ही करना है. और मेरे घर पे भी इट्स लाइक दैट, माई चाइल्ड इज नॉट वेल, अब मैं क्या करूं उसे बेबी सिटिंग में. एंड आई टोल्ड हर, I just smiled at her. She was looking at me and smiling कि I'm listening to her. And I told her, आप सब कुछ कर लोगे, आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे. और आई थिंक शी हैड ट्विंस और समथिंग, हाँ इसलिए वो ज्यादा परेशान थी, उसे ट्विंस थे. और कुछ और भी उसका इशू था. तो मैंने कहा फिक्र ना करे, अगर आपको भगवान ने भर के ट्विंस दिए हैं तो ताकत भी वही देगा. और एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और आपका करियर भी सेटल हो जाएगा. सो जस्ट एंजॉय, डू नॉट स्ट्रेस अप, इट विल, यू हैव द करेज. एंड सडनली शी स्टार्टेड स्माइलिंग, शी सेड थैंक यू सो मच. आई वाज आल्सो लाफिंग, क्योंकि मैंने कहा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं भी ऐसे ही आपकी तरह परेशान होती थी. तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज, प्रेजेंट में रही, और छोटी छोटी जो उस वक्त की खुशियां हैं, स्पेशली योर चिल्ड्रन, प्लीज बी विद देम. Second point we learned is practice gratitude and grow your destiny. So this was it about the whole book. The last wala symbol, if I say all the 7 symbols, तो पहला था garden, which is mind. Second was lighthouse, which is your purpose of your life. Third was sumo wrestler, that means practice kaizen, self improvement. Next was the pink wire cable, which is discipline. उसके बगैर Mhm. The gold stopwatch, respect your time. Next was golden fragrant yellow roses, खुशबू वाले roses जो serve others. And the last one, diamonds, which means embrace the
present. So here we come to the close of the session, and today was the summary. Now, up to you, friends. Tell me what exactly, how your life has changed with this book. Over to you. Yes. So, who goes first? May I? Yes, Meeta. Uh, Ma'am, wonderful thing I learned very in the very initial days from the book is thoughts. The maximum thought we dwell either in the past or in the future, making me either be in a worry state or in a guilt state. And the repetitive pattern. The more I think about the past, the more it presents again in the future. जिस बात का डर होता था वही सामने आके खड़ा होता था. So this is the pattern here and how I can break it by being more mindful. By taking next thing I took it was taking time out to be just silent. Be just observant about your thoughts. Sometimes the things are not what they appear as. You need to be silent, settle down your thoughts, and just rethink, or maybe the things come out as they are. You need not take any efforts for that. And the wonderful thing was for that was the art of the rose meditation. So that was a new thing. And yesterday's thing was mind opener sort of. Like you will just think, and you just wait for the future to happen like this and like this and like this, and the days pass out. And then you realize, अरे मैंने तो वो जिंदगी जी ही नहीं. I just want to go back to that time where I was much more happier, or maybe I could have done many more things. तो मुझे वो moment live कर लेना चाहिए था. तो rather than living in regret, just enjoy in present. जो भी जैसा भी है मजे करो इस समय पे. आपकी जर्नी डेस्टिनेशन नो डाउट आप फिक्स कर लो, कहाँ जाना है प्लान बना लो एंड रिजल्ट को देखते हुए. लेकिन जो जर्नी है ना उसके एक एक मोमेंट एंजॉय करो, खासकर अपने बच्चों के चाइल्डहुड. अपना चाइल्डहुड निकल गया, चलो ठीक है, हम इतने ध्यान में भी नहीं था कि भाई हम क्या ही है क्या नहीं है. पर तभी के मेमोरीज आज हमारी चेहरे पे स्माइल लाते हैं. तो आज जब मैं बच्चों के साथ रहकर रिकिंडल कर सकती हूँ उन मेमोरीज को, तो व्हाई नॉट. और यही बुढ़ापे में साथ देंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने अपने काम पे चले जाएंगे, तो यही मेमोरीज मुझे याद आएगी, यही मेमोरीज तब मुझे स्माइल देगी. तो इजंट इट वंडरफुल थिंग टू लिव इन प्रेजेंट. ये 3 सीख मेरे पॉकेट में अभी है. बहुत सारी होंगी, लेकिन अभी जैसे तत्पर बोलो तो ये 3 चीजें मैं हमेशा साथ लेके चलना चाहूंगी. ये टू मेक मी काइजन a better person than yesterday. Thank you. Good, super, great. Thank you. So very happy that your children have got a loving mother, if we see, and a thoughtful mother. And in fact, when you have this quality of being silent and observing yourself, that is the first step in moving ahead. Fantastic, super. Thank you so much for sharing, Smita. Who's going next? Can I? Yes, Kavita. So physically, I am rising earlier every day, day by day, like till I bring it back to my 3:30 a.m. schedule. Okay, so and every day I have started looking after my skin. Then I go to swim on time. I go to a walk or a gym definitely. So at least one, और जिस दिन वो भी नहीं हुआ तो कम से कम घर में एक्सरसाइज करना है. मतलब फिजिकली तो फिट रहना ही है. Mentally, I feel I have become more stable. I am focusing on one task at a time. मेरा हमेशा यहाँ के बदले वहाँ, वहाँ के बदले वहाँ, वो जो था ना इस लड़के का फ्लिकिंग माइंड, यस्टरडेज बॉय पीटर, वही सेम Peter, मेरा Peter. हाल था. हाँ, वही पीटर वाला हाल था. फिर जो जो मेरे खूब सारे चीजें ना, आई रियलाइज की मेमोरी से आ रही थी. तो आई रिप्लेस इट विद इमेजिनेशन कि नहीं, मेमोरी तो जो हो गया वो हो गया.
and I was seeking out opportunity in every adverse situation कि भाई जैसे कार का ब्रेकडाउन हुआ तो मेरे को लगा कि अरे हाँ ठीक है ना, इट्स गिविंग मी टाइम टू एंजॉय एंड स्लो डाउन. आई वाज रशिंग लाइक अ मैड वुमन. एंड देन जो मेरे फीलिंग था ना, एम्प्टीनेस, दिशाहीन, अंतहीन चले जा रहे हैं, तो उसका जो इस बुक से निकला कि भाई आई एम rekindled and refocused on my life's main reason why I'm here. What is my bigger purpose in life? What is my life worthy of? Then I to quite an extent, I have freed myself of the bekar worries. कि भाई हर चीज अपने समय से और जैसा होई है वही जो राम रचि राखा कोकरी तरक बढ़ाऊ शाखा. मीन्स जो भगवान ने ऑलरेडी रचा हुआ है ना वही होता है और उसी समय पे होता है. एंड हम बेकार में उसके बारे में सोच के, दिस वॉज माई बिगेस्ट एनर्जी ड्रेन, थिंकिंग अबाउट रबिश एंड वरीज एंड मतलब जो है नहीं हुआ नहीं पता नहीं क्या सोच रही थी. एंड मेरा एक तरीका है कि आई गो टू मच इनटू डिटेल एंड कॉम्प्लेक्स of anything. I'll write down like deeply and all and all. So I have stopped that and I am making the small incremental changes को देख रही हूँ मैं. जैसे पता है कि भाई चलो आज जिम नहीं गए, वॉक करने भी नहीं गए, तो घर पे एक्सरसाइज कर लो. Moving your muscle is more important than actually going there, like, So making it simple for myself. Then, कई बार मैं बहुत जल्दी एजिटेट होके माय लैंग्वेज गेट्स रफ. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट कि भाई जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है and जो वर्ड्स है, लेट देम बी काइंडर. द सेम थिंग कैन बी सेड इन अ काइंडर वे. देन जो मेरा वर्दी परस्यूट है, सो आई एम राइटिंग, रीराइटिंग, रीरीडिंग, मेकिंग इट मोर प्रिसाइज एंड सिंपल so that it can be done. Boring things I do first, and I try to bring creativity into it. कि कपड़े घड़ी करना नहीं है तो लाइक वो पहले करो. उसके बाद you treat yourself to a game of ludo, like that. Then I caught myself making excuses, and so every time I'm making an excuse. Yesterday my son said कि walk पे जाना है खाने के बाद, because we didn't go gymming and all. I said अरे कितना पूरा दिन काम किया है, ये है homework है, ये है. And finally I said, oh shit, leave it aside and let's go. He said, you'll change your clothes all over again. I said, yes, I'll change my clothes all over again and come and walk. And we did that. So that brings my to my mind कि my will is working more than some stupid excuse that of letting it go. And then Superb. This is, energy तो मेरा बहुत ही काम कर रहा है. क्योंकि मेरे क्या हैबिट थी कि फोन बजा ना बजा बस उठाना ही है. अरे फोन उठा, फोन, अरे कहीं आग नहीं लगी है, अगर इतना इंपॉर्टेंट होगा आदमी वापस करेगा. ठीक है, अच्छा मैसेज भी इमीडिएटली आई मस्ट रिप्लाई. ना सोचा ना समझा, बस मैसेज का आंसर कर दिया. तो ऑल दीज थिंग्स आई एम स्लोइंग डाउन. लाइक पीटर, आई डोंट वांट टू ड्रॉ द string of life very fast. I want to slowly and gradually and मतलब हर चीज को एंजॉय करो. नहीं एंजॉय कर रहे हो तो भी एटलीस्ट एक्सपीरियंस एंड लर्न अ न्यू लेसन. ताकि that the universe keeps repeating the things in your life because you're not learning a lesson from it. तो लाइक अभी तक तो मैंने इतना ही लिखा है. बोलने कम टू द मेंटल स्टेज, बाकी और अभी बहुत लिखना बाकी है मेरा. superb, superb. Too good a थैंक sharing, यू. and I acknowledge you. Thank you so much, Kavita. And I also acknowledge you for being so specific and being a student, a real honest student, I should say, throughout the journey of this book. Thank you so much. You have been a थैंक very यू प्रगति. adorable participant, I should say. Correct? Always थैंक यू active प्रगति. and always ready. Thank you. बट Yeah. Thank you so बट much. इट Yes, Rupali? हैपेंस. Yeah. It happens in your space too. All of y'all, Rupali, Smita, Pragati, everybody, y'all have created a space for me to show up like that. My cup is empty.
अब उसमें चाय डालो या दारू डालो, it depends on you all and me. Yeah, Thank sure. you. Thank It's you. Thank you. सबका साथ सबका विकास. Yes. Okay, yeah. Thank you. Yes. अच्छा, Hello. Rupali. Yes, Rupali. Ma'am, I'm हाँ, traveling, so I okay, okay. can't express. I have a lots Okay, of things to talk, but I can't today. So okay, no problem. I'm waiting Yeah, for the next session. I would like to join with all of okay. you. Yeah, Its sure, group sure. is very nice, and you have explained everything in so deep. So it has changed our life. That's all I have to say today. Thank you. Thank you. Thank you, Thank Rupali, you, and ma'am. thank you for joining. Even though you are traveling, still you have Yes, joined. ma'am. This Yes, shows your commitment. Thank you so yes, ma'am. much. Yeah, Thank yeah. you. Okay, Thank you. bye, Yes, everyone. thank you. Bye bye.